थी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। सबसे पहले आपको सीधे गोरखपुर ले चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में योगा कर रहे हैं। जगह जगह सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित। और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और गोरखपुर सांसद रवि किशन शुक्ल भी मौजूद। वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है। मैं इस कार्यक्रम का कल साक्षी रहा एवं इसकी सफलता के लिए सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं गोरखपुर से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज जब विश्व के अनेक प्रकार के असंतुलन, तनाव, तमाम युवाओं और लोगों के साथ योग कर रहे हैं। शारीरिक और मानसिक कार्यों की बड़ी चुनौतियों से जूझ रहा है, तब हमारे भारत का योग एक आशा की किरण के रूप में समाधान बनकर सामने आया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपसे प्रेरणा लेकर लोगों के बीच हेल्दी फूड को प्रमोट करने के लिए इस बार आयुष मंत्रालय ने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है। हम दिल्ली में 70 जगहों पर आज आईडीवाई के इस प्रोग्राम में सभी प्रतिभागियों को आयुष आहार वितरित करेंगे। यह आयुष आहार मोरिंगा के खाद्य पदार्थों पर आधारित है एवं लोगों के लिए एक हेल्दी एवं टेस्टी फूड के विकल्प के रूप में उभरेगा। मैं इस अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी से अपील करता हूँ कि आइए हम सब मिलकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग के मूल मंत्र को अपने मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में अपनाएं। योग को सिर्फ एक उत्सव न बनाए बल्कि जीवन शैली का अंग बनाए। जय हिंद, जय योग। सही तस्वीरें आप देख रहे हैं गोरखपुर से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ योग करने जा रहे हैं। ఇదే ఆయన నిజమైన ధ్యానం. పౌరుల పట్ల బాధ్యత, దేశం పట్ల శ్రద్ధ, యువత పట్ల నమ్మకం ఇవన్నీ ఆయన స్ఫూర్తిదాయకమైన జీవన శైలిలో నిండి ఉన్నాయి. ఆయన యోగా ధ్యానం పట్ల ఉన్న ఆసక్తి, రాజకీయాల ఒత్తిడి మధ్య సైతం తన మనశాంతిని ఎలా నిలుపుకోవాలో ప్రత్యక్షంగా నిరూపించింది యోగా. సినిమా మరియు రాజకీయాలు రెండింటినీ సమతుల్యం చేయడానికి ఆయన అభ్యర్థించేది 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 आज ఫిట్నెస్ అంటే శరీర పరిమితి మాత్రమే కాదు, శక్తి, శాంతి, సమతుల్యత వీటన్నిటి కలిపిన రూపం అని నమ్మే ఆనరబుల్ డెప్యూటీ सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में दौरे पर हैं और उनके साथ जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और सांसद रवि किशन शुक्ल भी मौजूद हैं। ముందుగా సూర్య భగవానుడికి నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ యోగ విద్యను అందించిన ఆది యోగి పరమశివునికి, ఆ మహాయోగ విద్యని మనకి పతంజలి మహర్షి యోగ శాస్త్ర రూపంలో అందించారు. వారి ఇరువురి పాదపద్మములకు నమస్కారం. మన యోగ విశిష్టతను, గొప్పదనాన్ని ఋగ్వేదంలో ఉన్న మహానుభావులు తెలియజేస్తే దానిని ప్రపంచవ్యాప్తం చేసిన దార్శనికులు మాత్రం గౌరవ ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారు. భారతీయ సనాతన ధర్మం తాలూకు విశిష్టతను యోగా ద్వారా
విశ్వవ్యాపితం చేసిన ఘనత ఆయన సొంతం. యోగా సాధనలు ఎంతటి దృఢ చిత్తాన్ని కలిగి ఉంటారు, ఒత్తిడి జయించి సంకల్ప సాధనలుగా ఎలా నిలబడతారన్న దానికి కూడా మన గౌరవ ప్రధాని శ్రీ మోదీజీ గారు నిలుగుతూ ఉన్నారు. ప్రపంచ యోగా దినోత్సవం యావత్ భారతవానికి భారతీయులకి దక్కిన గౌరవం. సరిగ్గా ఒక 2014లో అప్పుడే ఐక్యరాజ్య సమితిలో గౌరవ ప్రధానమంత్రి మోదీ గారు ప్రవేశపెట్టినప్పుడు దాదాపు 177 దేశాలు ఈ రెజల్యూషన్కి మద్దతు పలికాయి. ఇంతమంది మద్దతుని కూడగట్టగలిగి ఈరోజు మనకి 2015 నుంచి యోగా దినోత్సవం ప్రారంభమైంది. ఈ రోజున గౌరవ ప్రధానమంత్రి మోదీజీ గారి పిలుపు మేరకు మనం మొదట విశాఖ 11వ యోగా దినోత్సవ సంబరాలకు వేదికైంది. శ్రీ మోదీజీ గారి సమక్షంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి కృషితో ప్రపంచ రికార్డుకు వేదికగా నిలిచింది. విశ్వనరులు మోదీజీ గారి పిలుపు మేరకు యోగా ఒక వన్ ఎర్త్ వన్ హెల్త్ ఈ ఆరోగ్యం థీమ్ ని ఈ వేదిక నుంచి ప్రతి ఒక్కరూ ముందుకు తీసుకెళ్లాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, ఇక్కడ ఆసీనులైన మీ అందరికీ ఇక్కడికి వచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక వందనాలు, నమస్కారాలు. అలాగే గౌరవనీయులైన గవర్నర్ గారి శ్రీ అబ్దుల్ నజీర్ జీ గారికి, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, సివిల్ ఏవియేషన్ మినిస్టర్ కింజారపు రామ్మోహన్ నాయుడు గారికి, అలాగే మనకి ఆయుష్ మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ ఇండిపెండెంట్ జార్జ్ శ్రీ ప్రతాప్ రావు జాదవ్ గారు 2025 गोरखपुर सीएम योगी आदित्यनाथ की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर उनके साथ जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, गोरखपुर से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ग्यारहवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तस्वीरें, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद हैं। उनके साथ सांसद रवि किशन शुक्ल और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप गोरखपुर से देख रहे हैं। ग्यारहवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025
गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर गोरखपुर में मौजूद हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। ग्यारहवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर तो पीएम मोदी योगा दिवस पर विशाखापट्टनम पर मौजूद हैं। ग्यारहवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 आज, और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी के साथ तमाम राज्यों के सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ के योग करेंगे। As a result of Honorable Prime Minister's vision and promotion of yoga for the last 10 years, yoga has now achieved a mass momentum. We must make sure that yoga should be a part of our lives. Therefore, I am appealing to the people to take 1 hour daily for yourself to do yoga. To the youth, I say, embrace yoga not only as a form of exercise, but as a powerful tool to enhance focus, discipline, creativity in today's rapidly evolving digital world. With constant practice, you will be able to see a miracle in your life. Ultimately, a happier society. This is also the core goal of Vision Swarnandhra 2047, a healthy, wealthy and happy Andhra Pradesh, part of Vikasit Bharat. Honorable Prime Minister has revived yoga, naturopathy, Ayurveda, promoting green energy, Swachh Bharat and natural farming. Modi's vision is not just for healthy global community, but for a healthy planet as well. Let us continue to work together to strengthen the spirit of one earth, one health. It is a historical day for all of us to gather here, as well as those who joined us globally. Let us work together to achieve global peace and happiness. ఈ రోజు మిమ్మల్ని చూసిన తర్వాత 30 రోజులు పాటు ఒక దీక్షలా
ఒక ఉద్యమంలాగా యోగా కార్యక్రమంలో భాగస్వామయ్యారు. సత్తా చాటారు. యోగాంధ్ర కార్యక్రమం ట్రెండ్ సెట్టర్గా నిలిచింది. నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రారంభించిన ఈ ఉద్యమాన్ని మనమందరం ఆచరించి జీవన విధానంగా మార్చుకొని అందరిలో చైతన్యం తీసుకొస్తూ తెలుగు జాతి ప్రపంచానికి ఆదర్శంగా నిలవాలని మనస్ఫూర్తిగా పిలిపిస్తున్న ఈ కార్యక్రమానికి ఇంత విజయవంతంగా నిర్వహించిన ప్రతి ఒక్కరికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు. జై భారత్, జై ఆంధ్రప్రదేశ్. జై ఆంధ్రప్రదేశ్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఈ సందర్భంగా మనం ఒకటి ఇక్కడ మాట్లాడుకోవాలి. మన ఊహ తెలిసినంత వరకు గౌరవనీయులైన ప్రధానమంత్రి గారు కానీ, మన ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ అనారోగ్యం అని ఎప్పుడూ వినలేదు. దీనికి కారణం ఖచ్చితంగా యోగా అని చెప్పుకోవాలి. వాళ్ళిద్దరూ 24 గంటలు కేవలం పడుకునేది 4-5 గంటలు మాత్రమే. ఇద్దరూ ఎప్పుడూ కూడా యువకుల్లా 7 పదుల వయస్సులో కూడా నవ యువకుల్లా దూసుకుపోవడానికి కారణం ముమ్మాటికి మన సాంప్రదాయాల్ని గౌరవించడం, మన విలువల్ని పరిరక్షించడం, యోగా ద్వారా వారు ఎప్పుడూ ఆరోగ్యంగా ఉండడం మనందరికీ ఆదర్శవంతం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. వెల్, లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, Department of Post is proud to release a commemorative postage stamp, first day cover. These philatelic tributes on the occasion of 11th International Day of Yoga capture the essence of yoga as a symbol of harmony and health. Now I request DSVR Murthy Garu, Chief Postmaster General, Andhra Pradesh Circle, to hand over the album to the Honorable Minister, Sri Chandrasekhar Pemmasani Garu. Honorable Minister Pemmasani Garu will present the first album of the commemorative stamp to the Honorable Prime Minister for its formal release. మనందరి కరతాళ ధ్వనుల మధ్య ఈ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని కమ్మెమరేటివ్ పోస్టేజ్ స్టాంప్ ని గౌరవ ప్రధాని గారి చేతుల మీదుగా ఆవిష్కరణ జరిగింది. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. विश्व मंच पर भारत की अमूल्य पहचान है और विश्व मंच पर भारत की आत्मा को पहचाने वाले योग दूत का हम स्वागत करें. आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस पावन अवसर पर हम गर्व से स्वागत कर रहे हैं उस नेता का जिनकी सोच ने योगा को केवल भारत की सीमित नहीं किया बल्कि विश्व भर में स्थापित संतुलन और शांति का प्रतीक बना दिया. 2014 में संयुक्त राष्ट्र में उनके प्रस्ताव से लेकर आज करोड़ों लोगों तक योग की अभ्यास जगाने तक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी योग को भारत की सांस्कृतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया है. अभी हम अनुरोध करते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पावन अवसर पर अपनी अमूल्य संदेश प्रस्तुत किए. उनके जीवन में योग केवल अभ्यास नहीं, एक आदर्श है. आंध्र प्रदेश के राज्यपाल सैयद अब्दुल नजीर जी, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे परम मित्र चंद्रबाबू नायडू गारू, केंद्रीय कैबिनेट के मेरे सहयोगी के राम मोहन नायडू जी, प्रताप राव यादव जी, चंद्रशेखर जी, भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा जी, राज्य के डिप्टी सीएम पवन कल्याण गारू, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको नमस्कार.
देश और दुनिया भर के सभी लोगों को इंटरनेशनल योग डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 11वीं बार पूरा विश्व 21 जून को एक साथ योग कर रहा है। योग का सीधा साधा अर्थ होता है जुड़ना, और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरे विश्व को जोड़ा है। मैं बीते एक दशक में योग की यात्रा को जब देखता हूं तो बहुत कुछ याद आता है। वो दिन जब संयुक्त राष्ट्र में भारत ने प्रस्ताव रखा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिले, और तब कम से कम समय में दुनिया के 175 देश हमारे इस प्रस्ताव के साथ खड़े हुए। आज की दुनिया में ऐसी एकजुटता, ऐसा समर्थन सामान्य घटना नहीं है। ये सिर्फ एक प्रस्ताव का समर्थन भर नहीं था, ये मानवता के भले के लिए दुनिया का सामूहिक प्रयास था। आज 11 साल बाद हम देख रहे हैं कि योग दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। मुझे गर्व होता है जब मैं देखता हूं कि हमारे दिव्यांग साथी ब्रेल में योग शास्त्र पढ़ते हैं। वैज्ञानिक अंतरिक्ष में योग करते हैं। गांव-गांव में युवा साथी योग ओलंपियाड में भाग लेते हैं। यहां सामने देखिए, ये नेवी के सभी जहाजों में भी अभी बहुत शानदार योगा कार्यक्रम चल रहा है। चाहे सिडनी ओपेरा हाउस की सीढ़ियां हो या एवरेस्ट की चोटी हो या फिर समंदर का विस्तार हो, हर जगह से एक ही संदेश आता है, योग सभी का है और सभी के लिए है। योग इज फॉर एवरीवन, बियॉन्ड बाउंड्रीज, बियॉन्ड बैकग्राउंड, बियॉन्ड एज और एबिलिटी। इसको बंद, इसकी आवाज आ रही है। साथ किया है। मैं चंद्रबाबू नायडू गारू और पवन कल्याण गारू को बधाई देता हूं। आपके नेतृत्व में
आंध्र प्रदेश ने योगांध्रा अभियान का एक शानदार इनिशिएटिव लिया। मैं विशेष तौर पर नारा लोकेश गारू के प्रयासों की भी विशेष प्रशंसा करना चाहता हूं। योग का सोशल सेलिब्रेशन कैसे होना चाहिए, समाज के हर वर्ग को कैसे जोड़ना चाहिए, ये उन्होंने बीते 1-1.5 महीने के इस योगांध्र अभियान में करके दिखाया। और इसके लिए भाई लोकेश अनेक अनेक बधाई के पात्र है। और मैं तो देशवासियों को भी कहूंगा कि ऐसे अवसरों को किस प्रकार से सामाजिक स्तर पर गहराई से ले जाया जा सकता है, भाई लोकेश ने जो काम किया है उसको एक नमूना। पब्लिक पार्टिसिपेशन की यही वो स्पिरिट है जो विकसित भारत का मुख्य आधार है। जब जनता खुद आगे बढ़कर किसी मुहिम को थाम लेती है, किसी लक्ष्य को ओन कर लेती है, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति से हमें कोई रोक नहीं पाता। जनता जनार्दन की ये सदा इच्छा और आपके प्रयास यहां इस आयोजन में हर तरफ नजर आ रहे हैं। फ्रेंड्स, the theme of this year's International Day of Yoga is Yoga for One Earth, One Health. This theme reflects a deep truth. The health of every entity on earth is interconnected. Human well-being depends on the health of the soil that grows our food, on the rivers that gives us water, on the health of the animals that share our ecosystems, on the plants that nourish us. Yoga awakens us to this interconnectedness. Yoga leads us on a journey towards oneness with the world. It teaches us that we are not isolated individuals, but part of nature. Initially, we learn to take good care of our own health and wellness. Gradually, our care and concern extends to our environment, society, and planet. Yoga is a great personal discipline. At the same time, it is a system that takes us from me to we. साथियों, मी टू वी का ये भाव ही भारत की आत्मा का सार है। जब व्यक्ति अपने हित से ऊपर उठकर समाज की सोचता है, तभी पूरी मानवता का हित होता है। भारत की संस्कृति हमें सिखाती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी का कल्याण ही मेरा कर्तव्य है। मैं से हम की ये यात्रा ही सेवा, समर्पण और सह अस्तित्व का आधार है। यही सोच सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती है। साथियों, दुर्भाग्य से आज पूरी दुनिया
किसी न किसी तनाव से गुजर रही है। कितने ही क्षेत्रों में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। योगा is the pause button that humanity needs to breathe, to balance, to become whole again. मैं विश्व समुदाय से आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक आग्रह करूंगा। लेट दिस योगा डे मार्क द बिगिनिंग ऑफ योगा फॉर ह्यूमैनिटी 2.0, where inner peace becomes global policy, जहां योग सिर्फ पर्सनल प्रैक्टिस न रहे बल्कि ग्लोबल पार्टनरशिप का माध्यम बने, जहां हर देश, हर समाज योग को जीवन शैली और लोक नीति का हिस्सा बनाए, जहां हम मिलकर एक शांत, संतुलित और सस्टेनेबल विश्व को गति दें, जहां योग विश्व को टकराव से सहयोग और तनाव से समाधान की ओर ले जाए। साथियों, विश्व में योग के प्रसार के लिए भारत योग की साइंस को आधुनिक रिसर्च से और अधिक सशक्त कर रहा है। देश के बड़े बड़े मेडिकल संस्थान योग पर रिसर्च में जुटे हैं। योग की वैज्ञानिकता को आधुनिक चिकित्सा पद्धति में स्थान मिले, ये हमारा प्रयास है। हम देश के मेडिकल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में योगा के क्षेत्र में एविडेंस बेस्ड थेरेपी को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस दिशा में दिल्ली के एम्स ने भी बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। एम्स की रिसर्च में सामने आया है कि योग की कार्डियक और न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर्स के उपचार और विमेन हेल्थ और मेंटल वेलबीइंग में अहम भूमिका है। साथियों, नेशनल आयुष मिशन के जरिए भी योग और वेलनेस के मंत्र को आगे बढ़ाया जा रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। योगा पोर्टल और योगांध्र पोर्टल के जरिए देश भर में 10 लाख से अधिक इवेंट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है। आज देश के कोने कोने में इतनी सारी जगहों पर आयोजन हो रहे हैं। ये भी दिखाता है कि योग का दायरा कितना ज्यादा बढ़ रहा है। साथियों, हम सभी जानते हैं आज हील इन इंडिया का मंत्र भी दुनिया में काफी पॉपुलर हो रहा है। भारत दुनिया के लिए हीलिंग का बेस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है। योग की इसमें भी बड़ी भूमिका है। मुझे खुशी है कि योग के लिए कॉमन योगा प्रोटोकॉल बनाया गया है। योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के 6.5 लाख से अधिक ट्रेन वॉलेंटियर्स, करीब 130 मान्यता प्राप्त संस्थान और मेडिकल कॉलेजों में 10 दिन का योग मॉड्यूल्स, ऐसे अनेक प्रयास एक होलिस्टिक इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। देश भर में हमारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, वहां ट्रेन योग टीचर तैनात किए जा रहे हैं। दुनिया भर के लोगों को भारत के इस वेलनेस इकोसिस्टम का फायदा मिले, इसलिए विशेष ई आयुष वीजा दिए जा रहे हैं।
साथियों, आज योग दिवस पर मैं ओबेसिटी की तरफ भी फिर से सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बढ़ती ओबेसिटी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। मैंने मन की बात कार्यक्रम में भी इस पर विस्तार से चर्चा की थी। इसके लिए अपने खान पान में 10% ऑयल कम करने का चैलेंज भी शुरू किया था। मैं एक बार फिर देशवासियों से, दुनिया भर के लोगों को इस चैलेंज से जुड़ने का आह्वान करता हूं। अपने खाने में कैसे हम कम से कम 10% ऑयल कंजम्पशन कम करें, इसके लिए जागरूकता फैलानी है। ऑयल की खपत कम करना, अनहेल्दी डाइट से बचना और योग करना, ये बेहतर फिटनेस की जड़ी बूटी है। साथियों, आइए हम सब मिलकर योग को एक जन आंदोलन बनाएं, एक ऐसा आंदोलन जो विश्व को शांति, स्वास्थ्य और समरसता की ओर ले जाए, जहां हर व्यक्ति दिन की शुरुआत योग से करे और जीवन में संतुलन पाए, जहां हर समाज योग से जुड़े और तनाव से मुक्त हो, जहां योग मानवता को एक सूत्र में पिरोने का माध्यम बने और जहां योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ एक वैश्विक संकल्प बन जाए। एक बार फिर आंध्र के नेतृत्व को बधाई देते हुए, आंध्र के लोगों को बधाई देते हुए और विश्व भर में फैले हुए योग प्रैक्टिशनर्स और योग प्रेमियों को बधाई देते हुए आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। सुन रहे थे अभी हम योग विश्व में योग अच्छी सेहत का मूल मंत्र दे रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाखापट्टनम में मौजूद हैं। उनके साथ चंद्रबाबू नायडू जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर वही मौजूद थे और इसी के साथ योग दिवस की बधाई दी है पीएम नरेंद्र मोदी ने। और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अलग अलग शहरों से और राज्यों से संवाददाता जुड़े हैं। सबसे पहले हमारे साथ शिवनारायण जुड़े हुए हैं देहरादून से, मधुर दरबारी हैं प्रयागराज से, अखिलेश सिंह हैं दिल्ली से, विक्की डे हैं वाराणसी। सबसे पहले मैं अखिलेश का रुख करूँगा। अखिलेश, अगर बात की जाए तो 11वां योग दिवस है। अभी हम विशाखापट्टनम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे जिन्होंने बताया कि योग कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन शैली में। अखिलेश। अखिलेश, आप हमें सुन पा रहे हैं? मधुर रबारी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। मधुर, प्रयागराज में योग दिवस की क्या इस तैयारियां हैं और किस तरीके अभी हम प्रधानमंत्री को सुन रहे थे, उन्होंने योग को बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बताया अपनी जीवन शैली का। विशाल, मैं आपको बता दूं कि इस समय संगम तट पर मैं मौजूद है। ये वो संगम तट है जिस पर कुछ समय पहले यहाँ पे महाकुंभ का और करीब 66 करोड़ लोगों का यहाँ पे श्रद्धालुओं का यहाँ पे आगमन हुआ था और उसी जगह पे मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ पे एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है
आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय आपका जो योग दिवस है उसको लेकर के यहाँ पे बहुत बड़ा आयोजन यहाँ पे किया गया। पीछे अगर तो पूरा आप देखिए, आप उसके पीछे पूरा जो है कार्यक्रम का स्थल यहाँ बनाया गया, बैठने की व्यवस्था की है और जो एक साथ जो 10,000 लोग यहाँ पे योगा करने जा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये जो योगा की थीम है, एक पृथ्वी एक योग करके, वो स्वास्थ्य के लिए उन्होंने जो अभी प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ओबेसिटी को लेकर उन्होंने कहा, और उसके पहले भी वो ओबेसिटी को लेकर कह चुके हैं। सबसे बड़ी बात उनका कहना है कि अगर अपने आपको जो है स्वास्थ्य को ठीक रखना है तो सबसे पहले योगा आपको जो है अपनाना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे बड़ी बात ये आज जो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो योगा हो रहा है, केवल ये इंडिया के अंदर नहीं हो रहा है, पूरे विश्व के 193 देशों इसको जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसको मना रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारत की ताकत कितनी बड़ी ताकत है, क्योंकि योगा जो है वो आज भारत की जो है देन है और करीब 6000 वर्षों से पहले से यहाँ पे योग किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं भारत के लिए ये कितने गौरव की बात है कि आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यहाँ पे हम लोग मना रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैंने आपको संगम पे बताया, तो ये जो आज की जो थीम है वो योग संगम, हर योग करके यहाँ पे उसकी जो थीम दी गई है उसी के अंतर्गत करीब 10 कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किए जाएंगे। जिसमें योग संगम में अगर देखा जाए तो करीब पूरे देश के अंदर 1 लाख जगहों पर यहाँ पे जो है पूरी ये योग के शिविर लगाए जाएंगे, वहां पे लोग योगा करेंगे। उसके साथ साथ इसको पर्यावरण से भी जोड़ा गया है और पर्यावरण से जोड़ करके इसको जो है यहाँ पे जो है इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। जिसके साथ साथ जहाँ तक प्रयागराज की बात है, मैं आपको बता दूं कई जगहों पर ये योग के कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा कार्यक्रम जो इस समय यहाँ पे संगम तट पे हो रहा है, यहाँ पर कई नावों में बैठ के लोग जो है ये 10,000 लोग जो यहाँ पे योगा कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये नावों में बैठ करके जब बहेगी नाव आगे चलेगी तो उसमें भी योगा करते नजर आएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है जो अविरल धाराएं बह रही हैं, गंगा यमुना सरस्वती के जो संगम है, जिसको देखने के लिए पूरा विश्व सिमट करके प्रयागराज में आ गया था। एक तरीके से वसुदेव कुटुंबकम यहाँ पे देखने को मिला था। तो आज भी कहीं ना कहीं आप देखिए तो उसी अविरल धारा में जो निश्चल धारा बह रही है उसी में वो लोग खड़े होकर के योग करेंगे। तो एक तरीके से अद्भुत छटा देखने को मिलेगी। और योग जो है वो सबसे बड़ी बात यह है कि वो स्वास्थ्य के लिए बहुत जो है लाभदायक है। और आप देख सकते हैं कि करीब जैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ का कार्यक्रम बहुत जबरदस्त कार्यक्रम यहाँ पे आयोजन किया गया। यहाँ के मुख्य अतिथि, यहाँ के जो कैबिनेट मंत्री है उत्तर प्रदेश के नंद गोपाल नंदी जी यहाँ पे मौजूद आने वाले हैं। उसके साथ साथ यहाँ के जितने विधायक हैं, सांसद हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सब यहाँ पे मौजूद हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरा एक रेला यहाँ पे लगा हुआ है। एक बार फिर उसी तरीके से जैसे कि यहाँ से अभी 3 से 4 महीने पहले हम लोग जब यहाँ पे करते थे लाइव, तो देखते थे कि किस तरीके से लोग यहाँ पे आते थे, वो आस्था का रेला यहाँ पे उभरता था। ठीक उसी तरीके से लोग को भी एक आस्था का ही विषय मान सके और लोग बराबर यहाँ पे आते जा रहे हैं। और आने के बाद आ रहे हैं यहाँ पे जो बराबर कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम में जो लोग वहाँ पे शिरकत कर रहे हैं, वहाँ पे योगा कर रहे हैं और अपने बिल्कुल मधुर, आपको रोकेंगे और सीधे आपको ले चलते हैं गोरखपुर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ योग कर रहे हैं। सही तस्वीरें आप देख रहे हैं गोरखपुर से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर सांसद रविकिशन, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह योग कर रहे हैं। संचालन का तो पहले हथेली साइड में कंधे की तरफ फैलाएंगे, कंधे के समानांतर श्वास बढ़ते हुए, और ऐसे ही धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाएंगे, ऊपर की तरफ तानते हुए ले जाएंगे, जिससे कंधे का जकड़न दूर हो जाए। वापस आएंगे धीरे धीरे, नीचे लाइए धीरे धीरे, एक बार और दोहरा लेंगे। गर्दन को तनाव मुक्त करेंगे, कंधों को तनाव मुक्त करेंगे, श्वास भरते हुए धीरे धीरे जितना ऊपर उठा सकते हैं। हथेली को मिलाना नहीं है, वापस मध्य में लाइए अपने कंधे के बराबर और हथेली पलट दीजिए। हथेली पलट के उंगलियों को अपने कंधे पर रखेंगे, स्कंद संचालन। सामने केहनी मिला लेंगे, श्वास भरते हुए केहनी को, दोनों केहनी को ऊपर की तरफ उठाएंगे, गर्दन धीरे धीरे पीछे ले जाइए और पुनः नीचे और सामने 2 बार और दोहराइए। श्वास सामान्य, कंधे ढीले, जितना हो सकता है शरीर को शिथिल रखिए। इसी तरह पुनः उल्टा, नीचे से पीछे की तरफ और ऊपर से आगे की तरफ मिला देंगे। नीचे से पीछे, ऊपर से आगे, दृष्टि सामने, श्वास सामान्य, विश्राम। सम स्थिति में आ जाएंगे। अगला अभ्यास है कटी चक्रासन का। तो पैरों के बीच में 6 से 4 इंच का गैप बना लेंगे।
दोनों पैर के पंजे एक दूसरे के समानांतर, धीरे से दोनों हथेली को उठाएंगे, सामने की तरफ खोल देंगे, हथेली आमने सामने। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ घूमेंगे, बाएं हाथ की हथेली दाहिने कंधे पे, दाहिनी हथेली पीछे की तरफ, बाएं हाथ की हथेली दाहिने कंधे पे रख लेंगे और पुनः वापस आएंगे। इसी क्रिया को दूसरी तरफ दोहराइए, कटी चक्रासन। अब दाहिनी हथेली को बाएं कंधे पे रखिए, वापस आएंगे श्वास भरते हुए, एक बार और दोहरा लेंगे, दाहिनी तरफ और एक बार बाईं तरफ। इससे आपके कमर का कड़ापन दूर होगा, शरीर लचीला बनेगा। वापस आएंगे और विश्राम। अगला अभ्यास हमको उत्कट आसन का करना है, चेयर पोस्चर का। तो सर्वप्रथम अपने पैर की स्थिति को देख लीजिए, पैर का पंजा समानांतर होना चाहिए। धीरे धीरे दोनों हथेली को सामने की तरफ उठाइए, जमीन के समानांतर, हथेली का अंदर का हिस्सा जमीन की तरफ, कमर गर्दन सीधा। श्वास सामान्य करते हुए घुटने के बल हमको बैठना है, घुटना संचालन। और धीरे धीरे चेयर पे जैसे बैठते हैं, दृष्टि सामने, श्वास सामान्य, और पुनः वापस आइए, सीधा होइए धीरे धीरे। जिसको भी घुटने में ज़्यादा तकलीफ रहती है वो इस अभ्यास को बहुत आराम से करें। वापस पुनः बैठेंगे, श्वास सामान्य रखेंगे, वापस आ जाएंगे धीरे धीरे और विश्राम। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे ताड़ासन का। दोनों हथेली पुनः सामने लाएंगे, हाथों की उंगलियों को आपस में जोड़ेंगे, लॉक करेंगे, हथेली पलट देंगे बाहर की तरफ। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपनी भुजा को कान के बराबर तक ले जाएंगे और जितना हथेली को ऊपर की तरफ खींच सकते हैं खींचेंगे और अंतिम में अपने एड़ी को उठा लेंगे। जिसको चक्कर आने की समस्या हो अपना एड़ी नहीं उठाएगा और पैर की उंगलियों पे बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए, संतुलन बनाने की कोशिश कीजिए। धीरे से एड़ी को नीचे रखिए, हथेली को अपने सर के ऊपर, पुनः श्वास भरते हुए एक बार और दोहराएंगे, हथेली को ऊपर की तरफ खींचेंगे और अंतिम में जब शरीर पूरा खींच जाए तो एड़ी उठा के सामने दृष्टि टिका के श्वास पर केंद्रित होंगे। धीरे से एड़ी को नीचे रखिए, हथेली सामने, वापस सम स्थिति में आ जाइए, विश्राम। अगला अभ्यास है वृक्षासन। तो वृक्षासन जिसको चक्कर आता हो वह ना करेगा, वह सामान्य तरीके से देखता रहेगा। तो सर्वप्रथम दाहिने पैर की एड़ी को मोड़ के अपने जंघा मूल से लगा लेंगे, श्रोणी प्रदेश पर, पेल्विक एरिया की तरफ अपनी एड़ी को टिकाएंगे। दोनों हथेली को कंधों की तरफ जमीन के समानांतर फैलाएंगे और हथेली को पलटेंगे, यहीं से हथेली पलट लेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हथेली से नमस्कार मुद्रा में खड़े रहेंगे, श्वास समान, दृष्टि सामने। यह मन को एकाग्रता, शरीर को एकाग्रता प्रदान करेगा। धीरे धीरे वापस आएंगे, इसी तरह दूसरी तरफ से एक बार। धीरे धीरे आराम से दोनों हाथों को ऊपर की तरफ जोड़ लेंगे, श्वास सामान्य रखेंगे, दृष्टि सामने। अच्छा, ठीक, विश्राम, वापस आ जाएंगे। पुनः दोनों हथेली को सामान्य रखेंगे। शरीर को एक बार चेक कर लीजिए, पैर के पंजे समानांतर होने चाहिए, सम स्थिति में है कि नहीं, कंधे ढीले हैं कि नहीं। अगला अभ्यास हम लोग हस्तपादासन का करेंगे। तो दोनों हथेली सामने की तरफ से धीरे धीरे उठाएंगे ऊपर की तरफ। श्वास, जिसको भी कमर की दिक्कत हो धीरे धीरे हाथ उठाते जाइए। जिसको भी कमर की दिक्कत हो वो आगे की तरफ नहीं झुकेगा, सामने देखता रहेगा। श्वास छोड़ते हुए कमर से पहले 45 अंश के कोण पे आइए, फिर 90 अंश पे, और धीरे धीरे दोनों हथेली को अपने पैर के पंजों की तरफ ले जाइए। अगर आपका उंगली पैर को पंजों को स्पर्श कर सकता है तो करने दीजिए। अपने दृष्टि से घुटनों को देखिए, श्वास समान रखिए। धीरे धीरे पहले दोनों हाथों को उठाएंगे और गर्दन, वापस ऊपर की तरफ हाथ को खींचेंगे, सीधा, कमर को नहीं मोड़ना है, ऊपर की तरफ खींचना है। पुनः वापस आइए, श्वास छोड़ते हुए हस्तपादासन एक बार और दोहरा लेंगे। कमर से मोड़िए, श्वास छोड़ते हुए
उंगलियों को अपने पैर के पंजे की तरफ ले जाइए। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को उठाइए। उसके बाद कमर और हाथ पुनः सम स्थिति में आ जाएंगे। श्वास सामान्य, पैर के पंजे उसी तरह रहेंगे। अगला अभ्यास है अर्धचक्रासन। उंगलियों को अपने नितंब की तरफ लगा लेंगे, हाथ की उंगलियों को, अंगूठा कमर पे, श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे मोड़ेंगे, कंधों को पीछे, श्वास सामान्य करके उसी स्थिति में आकाश को देखते हुए रुकेंगे। यह सर्वाइकल के लिए, कमर के दर्द के लिए सर्वोत्तम आसन है। और वापस धीरे धीरे वापस आएंगे। पहले गर्दन को सीधा कीजिए, कमर को सीधा कीजिए और सामने देखिए, सर को झुकाना नहीं है, श्वास समान। वापस सम स्थिति में आ जाएंगे। अगला अभ्यास है त्रिकोण आसन का। तो दोनों पैरों के बीच में 2 से 2.5 फीट का गैप बनाएंगे। जिसको भी साइड में झुकने में दिक्कत होता है वो इस अभ्यास को करने से बचे। कमर में जिसको ज़्यादा पेन रहता है वो इस अभ्यास को करने से बचे। दोनों हथेली को जमीन के समानांतर फैला देंगे, कंधे की तरफ, हथेली नीचे की तरफ। अब धीरे से दाहिने पैर के पंजे को दाहिनी तरफ 45 अंश घुमा देंगे और धीरे धीरे दाहिनी तरफ कमर से मुड़ेंगे। दाहिने हाथ की हथेली दाहिने टखनों के पीछे, गुल्फ के पीछे, एंकल के पीछे पाम को लगाएंगे और धीरे से चेहरा ऊपर की तरफ, जो हाथ ऊपर की तरफ है उधर देखेंगे। श्वास सामान। वापस चेहरा को पहले जैसे लाएंगे और कमर को सीधा करेंगे। पैर के पंजे को ठीक करेंगे। अब इसी तरह बाएं पैर के पंजे को 45 अंश बाईं तरफ घुमा देंगे। धीरे धीरे कमर से मुड़िए और गर्दन घुमा दीजिए ऊपर की तरफ। श्वास सामान। वापस आएंगे और विश्राम। धीरे से जहां आप खड़े हैं वहीं बैठ जाएंगे और पैर को आगे की तरफ खोल देंगे। पैर की उंगलियों को थोड़ा सा हिला लीजिए, घुटनों को थोड़ा हिला लीजिए। पैर की उंगलियों को बाएं दाएं, पंजा और घुटना ऊपर नीचे। अपने शरीर को तनाव मुक्त रखिए। इसी आसन में बैठे रहेंगे। इस आसन का नाम है दंड आसन। दोनों हथेली जमीन पर टिकी हुई, दोनों पंजे आपस में सटे हुए पैर के साइड में। चलिए अगला अभ्यास करने के लिए तैयार हो जाएंगे। भद्रासन। तो दोनों पैर के तलवे को आपस में मिलाएंगे। धीरे धीरे घुटना मोड़ते हुए एड़ी को अपने श्रोणी प्रदेश, जननेंद्रिय की तरफ लाएंगे। कमर गर्दन सीधा, श्वास सामान्य। यह आपके मन को, शरीर को दृढ़ता प्रदान करता है, एकाग्रता प्रदान करेगा। अब इसी में तितली आसन का थोड़ा अभ्यास कर लेंगे, जिसके गर्दन में, जांघ में, गर्दन में कोई तनाव हो धीरे धीरे रिलीज हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा अपने घुटने को ऊपर नीचे हिलाइए, जितना हिला सकते हैं, और कमर सीधा रखिए, श्वास सामान रखिए। अब रुक जाइए, विश्राम। भद्रासन में रुकेंगे। वापस धीरे से दोनों पैरों को खोल देंगे। अगला अभ्यास है वज्रासन। तो जिसको भी घुटने में दिक्कत है, टखने में दिक्कत है, गठिया की प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, वह इस अभ्यास को करने से बचेगा। तो सर्वप्रथम दाहिने पैर को मोड़ के दाहिने पैर का तलवा दाहिने नितंब के नीचे रखेंगे। बाएं पैर को मोड़ के बाएं पैर का तलवा बाएं नितंब के नीचे रखेंगे। घुटना आपस में सटा हुआ, दोनों हथेली आपके जंघाओं पे। श्वास सामान्य। एक बार अपने श्वास को चेक कीजिए। श्वास सामान्य है, कमर गर्दन सीधा है, हम कहीं कोई तनाव में तो नहीं है। अगला अभ्यास करेंगे अर्ध उष्टासन का। तो धीरे से घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे इसी आसन में। घुटने के बीच में थोड़ा सा 4 से 5 इंच का गैप रहेगा। अर्ध चक्रासन की तरह दोनों अपने हथेली को अपने नितंब पे रखिए, अंगूठा कमर में लगा के रखेंगे और धीरे धीरे गर्दन को पीछे मोड़ेंगे, सीना ऊपर की तरफ खोल देंगे। श्वास सामान्य करके रुकने का प्रयत्न कीजिए और धीरे धीरे गर्दन को पुनः सम स्थिति में लाइए और धीरे से
वज्रासन में आ जाइए, विश्राम। अगला अभ्यास है शशकासन। तो सर्वप्रथम घुटनों को बीच से खोल देंगे, पैर का अंगूठा सटा हुआ रहेगा, जितना घुटना फैला सकते हैं फैलाएंगे। धीरे धीरे दोनों हथेली को सामने से ऊपर की तरफ उठाएंगे, कान के बराबर में भुजा को ऊपर जितना खींच सकते हैं हथेली को खींचेंगे। वापस दोनों हथेली को घुटनों के बीच में ला के रखेंगे नीचे की तरफ, और धीरे धीरे हथेली को आगे सरकाते जाएंगे, जैसे आपकी कलाई पकड़ के कोई खींच रहा हो। बिना नितंब उठाए अपने माथे को, अपने ठुड्डी को जमीन से लगाने की कोशिश करेंगे, श्वास समान। यह सर्वोत्तम आसन है हाई बीपी का, कब्ज का, मधुमेह का। धीरे धीरे अपने गर्दन को उठाएंगे, हाथ को पीछे लाएंगे, वापस दोनों हथेली को अपने जंघा पर रख देंगे। अगला अभ्यास है उत्तान मंडूकासन। घुटना खोल के रखेंगे, दोनों हथेली पुनः आकाश की तरफ उठाएंगे, दाहिनी हाथ की हथेली को बाएं कंधे पर रखेंगे, बाएं हाथ की हथेली को दाहिने कंधे पर, कमर गर्दन सीधा, जैसे चेयर का सहारा लेके बैठते हैं वैसे इस आसन में बैठिए। ये उत्तान मंडूकासन है। इससे आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन का संचार शुद्ध रूप से होता है, प्राणवायु बढ़ेगा, पहले से ज़्यादा आप स्वस्थ महसूस करेंगे, बिना कोई दबाव के एकदम सजग होते हैं। वापस धीरे धीरे दोनों हथेलियों को ऊपर की तरफ खोलेंगे, पुनः दोनों हथेली को अपने जांघ पे लाएंगे और धीरे से दोनों पैरों को खोल देंगे। दंड आसन में आ जाएंगे, पुनः दोनों पैर सामने की तरफ। एक बार पुनः अपने पैर के पंजों को हिला लीजिए, घुटनों को हिलाइए। अगर कहीं कोई तनाव रह गया है तो उसको निकालिए। विश्राम। अगला अभ्यास है वक्रासन का। तो सर्वप्रथम हम दाहिने पैर के पंजे को मोड़ेंगे, दाहिने पैर का टखना बाएं पैर के घुटने से टिकेगा, दाहिने हाथ की हथेली पीछे की तरफ घुमा देंगे, बाएं हाथ की हथेली को ऊपर की तरफ आकाश में उठाएंगे और केहूनी को मोड़ते हुए घुटने की बाहर की तरफ लगा देंगे। अपोजिट हैंड को उठाएंगे, हाँ, केहूनी को, वक्रासन। वापस आएंगे धीरे धीरे, वापस आएंगे धीरे धीरे, विश्राम। इसी तरह दूसरे पैर से दाहिने पैर को मोड़िए, बाएं पैर को मोड़िए, बाएं पैर का ठकना दाहिने पैर के घुटने से, घुटना पकड़ लीजिए, एक हाथ से घुटना पकड़ लीजिए, हाँ, वापस रोक के रखेंगे, चेहरा पीछे की तरफ, श्वास समान, वापस आ जाइए धीरे धीरे और विश्राम। पैर को आगे की तरफ खोल देंगे, दंडासन में। अगला अभ्यास है मकर आसन। तो सर्वप्रथम पेट के बल लेट जाएंगे, दाहिने हाथ की हथेली के ऊपर बाएं हाथ की हथेली, उसके ऊपर आपकी ठुड्डी, दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का फासला, अंगूठा बाहर की तरफ। हथेली के पृष्ठ भाग पे ठुड्डी रख देंगे, दोनों हथेली एक दूसरे के ऊपर, दोनों हथेली एक दूसरे के ऊपर, सामने, दोनों हथेली ठुड्डी के नीचे एक दूसरे के ऊपर। आराम से शरीर को ढीला छोड़ेंगे, रोकेंगे। मकर आसन, जैसे मगरमच्छ सोया रहता है उसी तरह विश्राम करेंगे। रीढ़ की हड्डी को ढीला छोड़ेंगे, कमर को ढीला छोड़ेंगे, श्वास समान। अब धीरे से अगला अभ्यास है भुजंगासन। अब धीरे से दोनों पैर के पंजों को मिला लेंगे, पैर का अंगूठा और एड़ी आपस में मिला हुआ, दोनों हथेली कंधों के नीचे, और धीरे धीरे अपने चेहरे को उठाइए, कंधों को उठाइए, केहूनी पूरा नहीं उठाएंगे, सामने देखेंगे, दृष्टि टिका के रखेंगे और धीरे धीरे पुनः वापस आ जाएंगे जमीन की तरफ। ठुड्डी जमीन से लगाएंगे, धीरे धीरे एड़ी को मिलाइए, पैर के अंगूठे को मिलाइए और पुनः एक बार और अभ्यास कीजिए इसको, भुजंगासन। यह आपके कमर को लचीला प्रदान करेगा, हृदय की शक्ति को बढ़ाएगा। वापस आएंगे धीरे धीरे और विश्राम। फिर से मकर आसन में आ जाएंगे। एक हाथ की हथेली के ऊपर दूसरी हाथ की हथेली, साइड में केहूनी,
एक हाथ की हथेली के ऊपर दूसरी हाथ की हथेली, पैर के पंजे बाहर की तरफ खुले हुए, श्वास समान। थोड़ा विश्राम करेंगे, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, अपने ज्वाइंटों पे अपना ध्यान ले जाइए, शरीर पूरा शिथिल है। अगला अभ्यास है शलभ आसन। तो भुजंग आसन की तरह जैसे पैर का एड़ी और अंगूठा सटा हुआ था वैसे सटा लेंगे। दोनों हाथ की हथेली को अपने जंघा मूल की तरफ ले जाएंगे, दोनों हाथ की हथेली को अपने जंघा मूल की तरफ ले जाएंगे और दोनों हाथ की हथेली जंघाओं के नीचे ले जाइए और धीरे धीरे दाहिने पैर को ऐसे उठाइए जैसे कोई आपका पैर पीछे से खींच रहा हो। एक पैर सीधा रहेगा, ज़्यादा नहीं उठाना है, घुटने को सीधा रखना है। वापस श्वास छोड़ते हुए पुनः सम स्थिति में आ जाइए। इसी तरह दूसरे पैर से दोहराएंगे। घुटना को सीधा रखिए, श्वास को सामान्य रखिए और वापस आ जाइए। इसी क्रिया को दोनों पैर से दोहराएंगे। तो जो दोनों पैर उठा सकता है वही उठाएगा, जिसको कमर के निचले हिस्से में दर्द रहता है वह नहीं उठाएगा। तो धीरे धीरे दोनों पैरों को उठाइए, श्वास भर के और विश्राम। धीरे से करवट बदल लेंगे, 100 आसन में आ जाएंगे। सीधा लेटना है। 100 आसन मतलब शरीर में जब प्राण निकल जाता है तो शरीर 100 आसन में चला जाता है। तो ऐसे ही अपने को तनाव मुक्त शरीर को ढीला छोड़ देंगे। पैर के पंजों के बीच में 1 से 1.5 फीट का फासला, हथेली आकाश की तरफ खुली हुई, कमर गर्दन ढीला। अब पुनः सजग होइए, दोनों पैरों को मिलाइए। अगला अभ्यास है सेतु बंद आसन। दोनों पैरों को मिलाएंगे, दाहिना घुटना मोड़िए, बायां घुटना मोड़िए, एड़ी को अपने नितंब तक लाइए। दाहिने हाथ से दाहिने पैर का टखना, एंकल पकड़ेंगे, बाएं हाथ से बाएं पैर का टखना और धीरे धीरे अपने नितंब को, कमर को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएंगे श्वास भरते हुए। यह सर्वोत्तम आसन है जिस पे भी कमर में दर्द रहता है। और धीरे धीरे वापस आएंगे एकदम सहजता के साथ। एक बार और दोहरा लेंगे श्वास भरते हुए। कमर को धीरे धीरे उठाइए, अपनी क्षमता से ज़्यादा नहीं उठाना है। शरीर पे किसी तरह का कोई तनाव नहीं लाएंगे। वापस आ जाएंगे और विश्राम। दोनों पैरों को खोल दीजिए, दोनों पैर आपस में सटे हुए, हथेली जमीन की तरफ। हथेली आप अपने हथेली से अपने मैट को, अपने आसन को दबाने की कोशिश कीजिए। अगला अभ्यास है उत्तान पादासन। तो एक एक पैर से पहले करेंगे। दाहिने पैर को 1 फुट की ऊंचाई पर उठाएंगे जैसे कोई पैर तान रहा हो। पंजे अपनी 1 फुट उठाना है, ज़्यादा नहीं उठाना है। उत्तान पादासन में 1 फुट उठाना है। वापस आएंगे नीचे। दूसरा पैर, पैर के पंजे को अपनी तरफ खींचिए, एड़ी बाहर की तरफ। इससे आपके घुटने के नीचे थोड़ा आराम मिलेगा। वापस आ जाएंगे। इसी क्रिया को दोनों पैरों से करेंगे। जिसको भी कमर के निचले हिस्से में दर्द रहता है इस अभ्यास को ना करें। धीरे धीरे दोनों पैर उठाएंगे। जमीन से ज़्यादा नहीं उठाना है, 1 फीट से ज़्यादा नहीं उठाना है। రైట్ హ్యాండ్ को पीछे जमीन पर रखे, पैर को కుడి చెయ్యిను వెనక నేలపై పెట్టి और विश्राम। अगला अभ्यास होगा अर्ध हल आसन का। एंकल के इसमें पास भी जिसको कमर के या नीचे राइट एंकल दर्द को रहता पकड़ने का है, जो पैर नहीं उठा सकता वह नहीं उठाएगा। जबरदस्ती कभी नहीं करेंगे। आसन के साथ अपनी क्षमता को चेक करते रहेंगे। तो धीरे धीरे प्रथम उत्तान पाद आसन में आइए जैसे अभी पुनः आपने किया, और धीरे धीरे दोनों पैरों को और उठाइए। पैर के पंजों को 90 डिग्री पूरा उठा लीजिए। झटका नहीं देना है, गर्दन उठेगा नहीं, सर का पिछला हिस्सा जमीन से सटा रहेगा, श्वास समान रहेंगे। पैर के अंगूठे को देखिए और धीरे धीरे पुनः वापस पहले उत्तान पाद आसन में आइए और धीरे से बिना सर उठाए एड़ी को जमीन पर रख दीजिए। अर्ध हलासन पूरा हुआ। थोड़ा सा विश्राम करेंगे, पैरों के बीच में थोड़ा गैप दे दीजिए, शरीर को शिथिल कीजिए।
अगला अभ्यास है पवन मुक्तासन। जिसको भी गैस की, कब्ज की शिकायत रहती है उसके लिए सर्वोत्तम आसन है, कमर के दर्द के लिए सर्वोत्तम आसन है। तो सर्वप्रथम दाहिने पैर को मोड़ेंगे, उसके बाद बाएं पैर को मोड़ेंगे, दोनों घुटनों को आपस में सटाएंगे, घुटनों को अपने सीने की तरफ लाएंगे, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ की हथेली को आपस में लॉक करके घुटना पकड़ लेंगे और धीरे से चेहरा उठाएंगे। जिसके गर्दन में दर्द रहता है, सर्वाइकल रहता है, वह गर्दन नहीं उठाएगा और अपने घुटनों को देखिए और रोकिए शरीर को। पुनः सर को ढीला छोड़ेंगे, जमीन पर रख देंगे सर का पिछला हिस्सा और धीरे से पैर को आगे की तरफ खोल देंगे। श्वास सामान्य। शवासन में रुकेंगे। शवासन का पूर्ण अभ्यास। थोड़े से 2 मिनट के लिए विश्राम करेंगे। पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का फासला, आंखें बंद, श्वास सामान्य। एक बार जहां जहां हम बोल रहे हैं वहां अपनी चेतना को ले जाएं। दोनों जंघा मूल, पूरी रीढ़ की हड्डी, गर्दन का जोड़, दोनों कंधों का जोड़, दोनों क्योनी, दोनों कलाई, सर का पिछला हिस्सा, माथा, दोनों आंख, कान, गाल, नाक, गला, सीना, सीना का मध्य भाग, पेट और नाभि, नाभि के नीचे का हिस्सा। पुनः दोनों पैर के अंगूठे। केवल अपने मन को घुमाना है इन अंगों पर। 2 बार अपने आप इसको घुमा लीजिए। इन सब अंगों को ध्यान करते हुए अपने शरीर, मन को अपने इन शरीर के अंगों पे घुमा लीजिए। इससे आपका शरीर पूरा शिथिल हो जाएगा, पूरा रिलैक्स हो जाएगा। आसन के दौरान कहीं कोई खिंचाव आ गया होगा तो अपने जगह ठीक हो जाएगा। तनाव रहित होकर आंखें बंद रखिए। 1 से 1.5 मिनट के लिए आंखें बंद रखिए, श्वास को सामान्य रखिए। आसपास के वातावरण में जो भी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसको महसूस कीजिए। चलिए अब लंबा गहरा श्वास लेंगे। थोड़ा सा पैर की उंगलियों को हिलाएंगे, हाथ की उंगलियों को हिलाएंगे और बाएं करवट, लेफ्ट साइड घूम जाएंगे। धीरे से बिना झटका दिए हुए बाईं तरफ घूमेंगे और उठ के सुखासन में बैठ जाएंगे। सुखासन में बैठेंगे पलथी मार के, या जो वज्रासन में बैठ सकता है वज्रासन में बैठें, जो पद्मासन में बैठ सकते हैं पद्मासन में बैठें। कलाई आपके केहनी पर, हथेली आकाश की तरफ खुली हुई, पहले उंगली अंगूठा आपस में सटा हुआ। श्वास सामान्य। अगला अभ्यास करेंगे कपालभाति का। कपालभाति में झटके से श्वास को बाहर नाक से फेंकना है। कहीं कोई शरीर में ज्यादा हलचल नहीं करना है, शरीर को नहीं हिलाना है। नाक से प्रेशर से श्वास को, चेहरे को सामान्य रखना है। चेहरे पे किसी तरह की कोई हलचल नहीं लाना है। केवल आपका नाक का और जहां से शक्ति का उपयोग होता है तो पेट का उपयोग होगा। पेट से झटके देंगे, नाक पे प्रेशर पड़ेगा, श्वास बाहर जाएगा। विश्राम, श्वास सामान्य। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन के लिए तैयार हो जाएंगे। सर्वप्रथम दाहिने हाथ की पहली 2 उंगली को मोड़ लेंगे, अंगूठे के नीचे लगाएंगे। दाहिने हाथ के अंगूठे से ही दाहिनी तरफ नासिका को बंद करेंगे। बाईं तरफ से धीरे धीरे श्वास भरिए और बाएं तरफ से श्वास भर के 1-2 सेकंड के लिए रुकिए, बाएं बंद कीजिए और दाहिने से धीरे धीरे श्वास छोड़िए। धीरे धीरे, जितना धीरे धीरे श्वास छोड़ सकते हैं छोड़ेंगे और 1-2 सेकंड के लिए विश्राम कीजिए। यहीं से दाहिने तरफ से पुनः श्वास भरेंगे। चेहरे पे किसी तरह का कोई तनाव नहीं, शुभ संकल्प लेते हुए श्वास भरिए और 1 सेकंड 2 सेकंड रोकिए, फिर दूसरी तरफ से बाईं तरफ से श्वास छोड़ दीजिए। इसको 2 बार और करेंगे। 1 चक्र पूरा हुआ, 2 चक्र और करेंगे। श्वास को जितना सामान्य तरीके से खींचेंगे उतना लंबा खींचेगा और जितना लंबा श्वास खींचेगा उतना लंबा हमारा जीवन, स्वस्थ शरीर होगा। तो श्वास खींचने में कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, छोड़ने में कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। श्वास हमें गिनती के मिले हुए हैं।
जब 2 चक्र पूरा पूरा हो जाए तो दोनों हाथ की कलाई अपने घुटने पर रख लेंगे। अगला अभ्यास करेंगे शीतली प्राणायाम का। तो सर्वप्रथम जीभ को बाहर की तरफ निकालेंगे, जीभ को नलीनुमा, जैसे कागज को फोल्ड करते हैं, रोल करते हैं, उसी तरह जीभ को बाहर ऐसे रोल कर देंगे। अब मुंह से धीरे धीरे श्वास भरेंगे। यह शरीर को शीतलता करते रहिए, धीरे धीरे श्वास भरते रहिए। यह शरीर को शीतलता प्रदान करता है। यह नेचुरल आपको ठंडक पहुंचाने का प्राणायाम है। धीरे धीरे मुंह बंद कर लेंगे, नाक से धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। पुनः इसको 2 बार और दोहराएंगे। जीभ बाहर, जीभ को रोल करेंगे, धीरे धीरे मुंह से श्वास लेंगे। यह आपके भूख प्यास को भी कंट्रोल करता है। श्वास जब भर जाए तो ओठ को बंद कर लेंगे, जीभ को अंदर करेंगे और धीरे से नाक से श्वास बाहर। 1 बार और। ये हाई बीपी अल्सर के लिए सर्वोत्तम प्राणायाम है। शरीर की गर्मी को शांत करने के लिए सर्वोत्तम प्राणायाम। और विश्राम। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। इसको हमको 3 बार करना है। तो इसके लिए पहले निर्देश सुन लेंगे, उसके बाद अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम अंगूठे से कान को बंद करते हैं, उंगलियों को अपने आंख पे और भौहों पे रखते हैं। गुंजन करेंगे, हमिंग साउंड करेंगे 3 बार। पुनः श्वास भरेंगे। पुनः 1 बार और दोहराएंगे। एक मिनट के लिए आंखें बंद रखेंगे, कमर गर्दन सीधा। ध्यान जो आपने किया है उसके ध्वनि को पुनः अपने कान में सुनने की कोशिश कीजिए। सारा शरीर शिथिल, कमर गर्दन सीधा, कंधे ढीले। थोड़ा सा ध्यान का अभ्यास करेंगे। इसी स्थिति में ज्ञान मुद्रा में हाथ है या किसी की हथेली गोद में है। कमर गर्दन सीधा रहना चाहिए, कंधे ढीले रहने चाहिए, शरीर में किसी तरह का कोई तनाव नहीं, चेहरे पे हल्की सी प्रसन्नता। अपने श्वासों को महसूस कीजिए। जो नाक के अंदर श्वास अंदर आ रहा है और बाहर जा रहा है, उस श्वास को अपने शरीर में, गले में, फेफड़े में और उस दबाव को अपने पेट में और शरीर में महसूस कीजिए। श्वास निकल रहा है, पेट हल्का हो रहा है, फेफड़ा हल्का हो रहा है, इसी तरह शरीर पूरा हल्का हो रहा है। अपने मानसिक मन को अपने भ्रुकुटी के मध्य में ले जाएंगे, जहां हम लोग चंदन टीका लगाते हैं, महिलाएं बिंदी लगाती हैं। 1 बार के लिए 2-4 सेकंड के लिए वहां रुकेंगे। अपने आसपास के और गहरा में जो ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है उसको महसूस। अब लंबा गहरा श्वास लेंगे, बिना आंखें खोले 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। पुनः श्वास भरेंगे। एक बार और। दोनों हाथों
हाथों को आपस में जोड़ लेंगे, शांति पाठ करेंगे। हम बोलेंगे, आप लोग उसके बाद दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेली को आपस में रगड़ेंगे। हथेली रगड़ने के बाद हथेली को अपने चेहरे पे, आंखों पे रख लेंगे। धीरे से हथेली को नीचे रखेंगे। आज का अभ्यास यही पूर्ण हो रहा है। आचार्य जी आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब सभी अभ्यास जो यहाँ आगंतुक हैं उनके लिए सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था बाहर इस सभागार के बाहर है। आप सभी वहाँ से सूक्ष्म जलपान लेकर के ही अपने गंतव्य स्थान को जाएं। परम पूज्य महाराज जी के साथ जो हमारे यहाँ पर मंत्री और विधायक सांसद गण हैं, जनप्रतिनिधिगण। तो इसी तस्वीरें आप देख रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने योग किया। गोरखपुर में मौजूद थे, उनके साथ सांसद रवि किशन और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। तो और सीधे आपको ले चलते हैं विशाखापट्टनम, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के साथ योग कर रहे हैं। निकालिए। రైట్ నాస్ట్రిల్ నుంచి నిదానంగా శ్వాసం బయటికి తీసుకోండి और राइट से सांस को अंदर लीजिए और लेफ्ट से सांस को बाहर छोड़िए। రైట్ నుంచి లోపల తీసుకోండి, మళ్ళీ लेफ्ट నుంచి శ్వాసం బయటికి వదలండి। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। इनहेल through the left, exhale through the right. Inhale through the right and exhale through the left. निदानंगा श्वास बदलतू सामान्य स्थिति को रंडी। धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए और विश्राम कीजिए। अब हम शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు शीतली प्राणायाम अभ्यासम చేద్దాం। हाथों से ज्ञान मुद्रा धारण कीजिए। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा धारण कीजिए और घुटने पर स्थापित करें। రెండు చేతులతో జ్ఞాన ముద్రం చేయండి, మోకాలుపై పెట్టండి। जीभ को बाहर निकाले, दोनों तरफ मोड़िए, नलिकाकार बनाइए। నాలుక బయటికి తీసి రెండు వైపు మడిచి పెట్టండి और धीरे से जीभ से श्वास को अंदर लीजिए और नाक से बाहर छोड़िए। जीव द्वारा श्वासम लोपल तीसकोंडी, नोज द्वारा श्वासम बयटिकी वदलंडी। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। जीव से श्वास को अंदर और नाक से बाहर। मरोकसारी प्रैक्टिस చేద్దాం। यहां प्राणायाम शरीर में शीतलता को प्रदान करता है, पित्त दोष को नियंत्रित करता है और धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए। निदानंगा श्वास వదులుతూ सामान्य स्थितिకి రండి, విశ్రామం చేయండి। अब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు भ्रामरी प्राणायाम प्रैक्टिस చేద్దాం।
पहले षण्मुख मुद्रा धारण कीजिए, षण्मुखी मुद्रा धारण कीजिए। మొదటిగా షణ్ముఖी मुद्रा చేయండి। दोनों अंगूठे से कान बंद करें और उंगलियों को चेहरे पर स्थापित करें। రెండు తమ్ నుంచి చెవులు మూసుకోండి, మిగతా వేలతో ముఖపై ఉంచండి। नाक से श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए कंठ से भ्रमर जैसे ध्वनि को उत्पन्न कीजिए। श्वास వదులుతో గొంతులతో పొరుగులాగా మాదిరి శబ్దం చేయండి। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे और वाइब्रेशन को महसूस करने का प्रयास। మరొకసారి ప్రాక్టీస్ చేద్దాం। और धीरे से दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए। अब हम मेडिटेशन का प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान का प्रैक्टिस करेंगे। ఇప్పుడు మెడిటేషన్ ప్రాక్టీస్ చేద్దాం। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। ध्यानासन लो కూర్చోండి, ఏదైనా ధ్యానాసనంలో కూర్చోండి। धीरे से आंखें बंद करें, सिर गर्दन कमर सीधा रखें। నిదానంగా కళ్ళు మూసుకోండి, శరీరాన్ని నేరంగా పెట్టండి। श्वास प्रश्वास पर पूरा ध्यान रखें। श्वास పైన దృష్టి పెట్టండి। पवित्र विचारों को मन में लेने आने का प्रयास। पवित्र आलोचनलो मनस्सुलो తీసుకురండి और धीरे से मन में प्रणव ध्वनि का धारण कीजिए, ओमकार का धारण कीजिए। మనస్సులో ప్రణవ ధ్వని ఓంకార ధ్వనిని ఆవాహనం చేయండి और मन ही मन में संकल्प धारण कीजिए, मैं शांति, आनंद, स्वास्थ्य और देश के विकास के लिए समर्पित हूं। మనస్సులో సంకల్పం ధారణం చేయండి, నేను శాంతి, ఆనందం, స్వాస్థ్యం మరియు దేశ కోసం అంకితం అవుతాను। पूरा शरीर को रिलैक्स रखने का प्रयास। रिलैक्स योर बॉडी कंप्लीटली। अब हम शांति मंत्र का उच्चारण करेंगे। करते हुए हम आज का सत्र समाप्त करेंगे। ఇప్పుడు शांति मंत्र చేద్దాం। कोई किसी भी ध्यानासन में बैठिए, कमर गर्दन सीधा रखें और धीरे से दोनों हाथों को मिला के नमस्कार मुद्रा में आइए। नमस्कार मुद्रा చేయండి। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धीरे से दोनों आंखों खोले और हाथों को नीचे लेके आइए। నిదానంగా కళ్ళు తెరపండి और చేతులు सामान्य स्थिति को తీసుకురండి। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। ఈ అద్భుతమైన యోగాంధ్ర కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకున్న लोगों के साथ योग अभ्यास किया। विश्व में योग 11वें योग दिवस का आज पूरी दुनिया भर में आयोजन हो रहा है।
अभी हम कुछ देर पहले तस्वीरें देख रहे थे जहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों के साथ योग कर रहे थे। अब देखिए प्रधानमंत्री किस तरीके से वहाँ जो योग कर रहे थे, योगा खत्म करने के बाद लोगों से बात कर रहे। उनके साथ चंद्रबाबू नायडू जो कि तेलंगाना के आंध्र प्रदेश के सीएम हैं, उनके साथ लोगों से वार्तालाप कर रहे हैं। लोगों से मिलते हुए पीएम नरेंद्र मोदी। और आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इसी पे हम अलग अलग जगह की तस्वीरें देख रहे थे। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाखापट्टनम पहुंचे तो यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज।